हेलो माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ लिटरेरी आर्ट। लिटरेरी आर्ट के मेरे आज के इस यूट्यूब सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी शैल डिस्कस द सोनेट 1 बाय शेक्सपियर फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर increase. That is the title of Shakespeare's sonnet 1. Friends, actually, he has written 154 sonnets, and the first sonnet out of 154, the first sonnet in sequence also, that we are going to discuss in this session. He was the person who contributed 154 sonnets to the British literature, and these sonnets are actually called as Shakespearean sonnets. These sonnets actually uh, were all written in the form of three quatrains and couplet, that is now recognized as Shakespearean sonnet, the form that is called as a Shakespearean sonnet. The sonnets fall into two groups: sonnets 1 to 126, addressed to a beloved friend, a handsome and noble young man, and sonnets 127 to 152, to a malignant but fascinating dark lady who the poet loves in spite of himself. Nearly all of Shakespeare's sonnets examine the inevitable decay of time and the immortalization of beauty and love in poetry. So, friends, let us study certain writings of him. His earliest plays were primarily comedies and histories, such as Henry VI and the Comedy of Errors. Then certain tragedies he had written, such as Romeo and Juliet. Then certain other plays, such as Julius Caesar, Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, Antony and Cleopatra. And in his final years, Shakespeare turned to the romantic dramas or romantic plays, such as Cymbeline, Winter's Tale, The Tempest, As You Like It. So, such type of versatile personality we have got to study today, and we are going to study his first sonnet in the sequence of 154 sonnets. Friends, this sonnet is the first of sonnets published in 1609. The sonnet may have been composed late in the sequence, but placed first as the preface to the other sonnets. And Philip Martin says that this sonnet is important as it states the themes for the other sonnets immediately following and also for the sequence at large. उन्होंने अपनी जो ये सोनेट है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज, द फर्स्ट सोनेट ऑफ शेक्सपियर इन द सीक्वेंस ऑफ 154 सोनेट्स, वो जो लिखी थी वो शायद उन्होंने बहुत बाद में लिखी है। उससे पहले उन्होंने कुछ सोनेट्स लिखी थी, लेकिन सीक्वेंस में जो है वो फर्स्ट उन्होंने रखी हुई है, और इसी की वजह से वी कैन कॉल इट एज द प्रीफेस टू द अदर sonnets. Why? Because all the other sonnets follow it, and that is the reason why it is called as a preface to the other sonnets. So friends, sonnet का जो ये sequence है उन्होंने ये sonnet first में लिखी है. तो sonnet 1 has the traditional characteristics of the Shakespearean sonnet: three quatrains and a couplet written in iambic pentameter with an AB AB CD CD EF EF and GG rhyming scheme, which is the quality of Shakespearean sonnet. Then this first sonnet, Shakespeare engages in an argument with the youth regarding procreation. Procreation, and this sonnets right from 1st to 17th are considered as a procreation sonnets. The sonnet from fairest creatures we desire increase. Right from the title, we come across of the theme of the sonnet, what he urges for. In this sonnet, he actually tells the youth that
you must be ready for procreation. That means you are simply beautiful like rose. See what he says in the second line of the sonnet. From fairest creatures we desire increase, that thereby beauty's rose might never die. But as the reaper should by time disease, his tender hair might bear his memory. So, what he says here, that you are simply beautiful like rose. That means the beauty of the youth or the beauty of the man to whom he is referring here, referring here and urging for procreation. That person, that man is compared to the rose, and he says that thereby beauty's rose might never die. That means your beauty is like the rose, and your beauty will never die. It should never die. You should have to pass it over. That means you should procreate your beauty, and for that you have to marry somebody in the sense a woman, and you should regerminate yourself. That means किसी भी प्रकार से हमें क्या करना है कि हमारा जो वंश है उसको बढ़ाना है। और वो यहाँ पे जो यूथ है, जो यंग मैन है, उसको ये कह रहा है कि तुम एक रोज के जैसे ब्यूटीफुल हो, और तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम्हारे जैसा ही कोई और जन्म ले जो कि तुम्हारे जैसे ही ब्यूटीफुल हो। तुम यहाँ पे अगर ईश्वर ने तुम्हें निर्माण किया हुआ है तो उनका उद्देश्य ये है कि तुम्हारे जैसे ही ब्यूटीफुल लोग इस विश्व में, यूनिवर्स में और ज्यादा पैदा हो। सो हिज टेंडर हेयर माइट बियर हिज मेमोरी। दैट मीन्स जो कुछ भी उनका जो हेयर है या फिर उनका जो वंशज निर्माण होने वाला है, तो वो भी तुम्हारे जैसा ही ब्यूटीफुल हो। तुम्हें देख के लगे, उसे देख के लगे कि तुम्हारे जो एंसेस्टर्स थे, उसके जो एंसेस्टर्स थे वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल थे। बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड टू थाइन ओन ब्राइट आईज, feedest thy lights flame with self-substantial fuel, making a famine where abundance lies। और वो यहाँ पे कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी आईज बहुत ही ब्राइट है, इसकी वजह से तुम्हारी ब्यूटी और एनहांस हो रही है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि यू आर फीडिंग योर ओन ब्यूटी। दैट मीन्स तुम खुद की ब्यूटी को खा रहे हो। यू आर नॉट रेडी टू रिप्रोड्यूस, यू आर नॉट रेडी टू pass it to the next generation, you are not ready to create next generation। वो कह रहे हैं कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी ब्यूटी पास हो या फिर किसी और को मिले जो कि तुम्हारा ही कोई अंश हो, और इसी की वजह से तुम अपनी ब्यूटी को खा रहे हो। यू ही इज कंपेयर्ड विथ द what we can say candle here, as the candle is actually burns itself for giving the light, and it feels beautiful while looking at the candle, but it has to burn itself। तो वो कह रहा है यहाँ पे कि तुम्हारी जो फ्लेम है ब्यूटी की, वो खुद को तुमको खा रही है, क्योंकि तुम उसे पास नहीं करना चाहते हो, और एक दिन वो खत्म होने वाली है। तो इससे पहले कि वो खत्म हो जाए, यू मस्ट हैव टू पास इट ओवर। सो मेकिंग अ फेमाइन वेयर अबंडेंस लाइज। बहुत बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है ईश्वर ने तुम्हें, और इस ब्यूटी का तुम अकाल निर्माण करने वाले हो। फेमाइन दैट इज अकाल। सो ये फेमाइन जो तुम निर्माण करने वाले हो, ये बहुत ही बुरी चीज है, ऐसा वो यहाँ पे कह रहे हैं। दाई सेल्फ दाई फो टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूएल। सी द कॉन्ट्रास्ट, the irony which has been made here by the poet। what he says, thyself thy foe, you are
योर राइवल, ऐसा वो यहाँ पे कहते हैं। तुम खुद का ही विनाश करने जा रहे हो, तुम खुद के ही शत्रु बन रहे हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जैसा कोई और सुंदर तुम्हारी ही अस्तित्व से निर्माण हो। इसलिए वो कहता है कि दाई सेल्फ दाई फो टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूएल। तुम बहुत ही अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई अच्छा अगर तुम निर्माण करते हो तो वो उससे भी अच्छा है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुम तुम्हारे खुद के शत्रु बन रहे हो। दाउ दैट आर्ट नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट, नाउ यू आर द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट विच इज वेरी ब्यूटिफुल एंड ओनली हेराल्ड टू द गाउडी स्प्रिंग। तुम बहुत ही खूबसूरत हो, एक बहुत ही अच्छे स्प्रिंग की तरह। विद इन थाइन ओन बर्ड बरीएस दाई कंटेंट, बट तुम खुद को ही क्या कर रहे हो, बरी कर रहे हो। इसका मतलब है कि खुद को दफना रहे हो। क्या क्यों दफना रहे हो? क्योंकि तुम्हारे जैसा तुम कुछ भी क्रिएट नहीं करना चाहते हो। विद इन थाइन ओन बर्ड बरीएस दाई कंटेंट एंड टेंडर चर्ल मेकेस्ट वेस्ट इन निकार्डिंग। तो यहाँ पे वो कहते हैं यू आर वेरी माइजर, यू आर वेरी मीगर। दैट मीन्स चर्ल मीन्स व्हाट, तुम बहुत ही कंजूस हो, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी ब्यूटी पास हो या फिर तुम्हारे जैसा और कोई क्रिएट हो। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर ब्यूटी and by doing that you are wasting your existence also. Pity the world or else this glutton be to eat the world's due by the grave and thee। और वो लास्ट के कुछ जो उनके कपलेट्स है वहां पे वो कहते हैं कि मैं ऐसी दुनिया को करुणा की नजर से देखता हूँ, ऐसे लोगों को मैं करुणा की नजर से देखता हूँ जो कि नहीं चाहते कि खुद की ब्यूटी को पास ऑन करें। और वो कहते हैं कि अगर तुम प्रोक्रिएशन में हेल्प करते हो तो तुम्हारी जैसी ही खूबसूरत नेक्स्ट जनरेशन बन सकती है, लेकिन अगर तुम अपनी जैसी ब्यूटीफुल जनरेशन दुनिया को या इस विश्व को नहीं देना चाहते हो तो तुम इस अर्थ में दफना दिए जाओगे और उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड दी। तो तुम ये जो विश्व की ब्यूटी है उसको तुम दफना रहे हो खुद के साथ, तो ये बहुत ही गलत चीज है। यू मस्ट हैव टू पास योर ब्यूटी टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय प्रोक्रिएशन। यही इसकी थीम है। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज। दैट मीन्स जो ब्यूटीफुल लोग हैं उनको ये समझना है कि वी हैव टू क्रिएट मोर ब्यूटीफुल पीपल, वी हैव टू गिव मोर ब्यूटीफुल जनरेशन टू द यूनिवर्स, जो कि आपके बाद भी इस विश्व को बहुत ही सुंदर बना सके, बहुत ही अच्छा बना सके। तो यही ये पोयम हमें यहाँ पे, सोनेट हमें यहाँ पे सजेस्ट करता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।